बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहले लेक्चर है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल, जिसका अतर है गुजराती। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लीनियर रिग्रेशन मॉडल। वीडियो लंबी न हो जाए इस वजह से हमने इस चैप्टर को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। इन चैप्टर ऑफ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इन इट्स जनरल फॉर्म मे बी रिटन एज yi is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i up to beta k xki plus ui, which name is equation 1.1. We know that the left hand side y name is dependent variable, which is also called regression, response variable, endogenous variable, and explained variable. The right hand side, which is x, is which name is independent variable, regressor, exogenous variable, explained net variable, which is also in right hand side, which is also include ui. U is a random term, disturbance term, stochastic term, or error terms. In equation 1.1 we will see that the subscript, which is I, the I subscript denote the ith observation. For ease of exposition, we will write equation 1.1 as yi is equal to beta x plus ui, which name is equation 1.2, where beta x is a short form for beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus up to beta k xki. Equation 1.1 are its short form. 1.2 is known as the population or true model. मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो एक दूसरे की बराबर है। इक्वेशन 1 को हम एक जनरल फॉर्म में लिखा है और इक्वेशन 1.2 को हमने एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है। इस दोनों इक्वेशन 1.1 और इक्वेशन 1.2 को हम ट्रू पॉपुलेशन और ट्रू मॉडल भी कह सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इज जनरल एंड रिफर्स टू अ वेल डिफाइंड एंटिटी, पीपल, फर्म्स, cities, states, countries, and so on. The population or true model, it consists of two components. The first component is a deterministic component, which name is beta x, which is also called the conditional mean of y or expected y given x. The second one is component is non-systematic component or random term or stochastic component ui. An individual yi value is equal to the mean value of the population of which it is a member plus or minus a random term. For example, if y represents family expenditure on food, x is family income. Equation 1.2 states that the food expenditure of an individual family is equal to the mean food expenditure of all families with the same level of income plus or minus a random components, varies from individual to individual and depends on several factors. Primary objective is to explain the mean average behavior of y in relation to the regressors. How mean y responds to change in the values of the x variables. An individual y value will hover around its mean value. The causal relationship between y and the x, if any, should be based on the relevant theory. How many regressors in the model depends on the nature of the problem. The error term u, a catch-all for all variables that cannot be introduced in the model. The average influence of this variable is assumed to be negligible. In equation 1.1, we can see the beta 1 up to beta k, which is also called regression coefficient or parameters. Beta 1 is the intercept of the model, beta 2 to beta k, which is called the slope coefficients. Each slope coefficient measures the partial rate of change in the mean value of y for a unit change in the value of a regressor, holding the values of all other regressor constant ceteris paribus. The nature of y variables. It is generally assumed that y is a random variable. It can be measured on 4 different scales: nominal scale, ordinal scale, interval scale, and ratio scale.
The first skill is which is called nominal skill, which is also called categorical names, no ranking or no order. Nominal skill are used for labeling variable without any quantitative value. For example, note all of these scales are mutually exclusive, no overlap, and none of them have any numerical significance, no ranking और no order. मतलब नॉमिनल स्केल में हम ये डिस्कस करते हैं कि मतलब किसी चीज़ को एक मुंतखब नाम देना, इसको हम कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं देते. बस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है, व्हाट इज़ योर जेंडर, मतलब आप औरत हो कि आदमी हो, सही है. व्हाट इज़ योर जेंडर, तो जो बंदा इसको सेलेक्ट करेगा, अगर वो मेल है तो वो मेल को सिलेक्ट करेगा, अगर वो फीमेल है तो वो फीमेल को सिलेक्ट करेगा. या दूसरा एग्जांपल हमारे साथ है, व्हाट इज़ योर हेयर कलर, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लॉन्ड है, ग्रे है, अदर है. जो भी जिसका रंग है वो भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. मतलब इसमें हम एक वेरिएबल को जो डेटा कलेक्ट करते हैं इसको हम सिर्फ और सिर्फ नाम देते हैं और इसको हम कंपैरिजन इसमें नहीं करते. दूसरा स्केल हमारे साथ है ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल इज डिफाइंड एज नॉमिनल स्केल प्लस कैन बी रैंक्ड ऑर्डर. Data measured at this level can be placed into categories and these categories can be ordered or ranked. मतलब जो डेटा है हम इसको एक कैटेगरीज दे सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल लेटर ग्रेड्स ABCD, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये एक A नंबर पे है, B नंबर पे है, C नंबर पे है, ठीक है. इसको हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर सकते हैं. गेस्ट स्पीकर स्पीच एक्सीलेंट एवरेज पुअर, मतलब इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि मतलब अगर स्पीकर की बात की जाए कि वो एक्सीलेंट स्पीकर है या एवरेज स्पीकर है या पुअर स्पीकर है. रेस्टोरेंट सर्विसेज 1 फॉर पुअर, 2 फॉर एवरेज, 3 फॉर वेरी गुड एंड 4 फॉर एक्सीलेंट. मतलब इस तरह भी हम रैंकिंग कर सकते हैं. स्टूडेंट्स रैंक इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. The third one measurement skill is interval skill. Ordinal plus interval are consistent. IQ score meaningful difference between 107 and 108 IQ square. Temperature meaningful difference between 15 degrees centigrade and 16 degrees centigrade. Distance meaningful difference between 30 kilometer and 40 kilometer. Note there is no true zero. IQ tests do not measure people who have no intelligence. Temperature 0 degree centigrade does not mean to heat at all, etc. मतलब इंटरवल स्केल जो है वो हमारे पास ऑर्डिनल प्लस इंटरवल और कंसिस्टेंट है, इसमें आता है. इसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और इसमें हम डिफरेंस भी मालूम कर सकते हैं. मतलब इसमें ये मसला है, अगर हम IQ स्कोर की बात की जाए, IQ स्कोर जो है इसमें ये मसला है कि इसको जो है IQ स्कोर जो है वो विदाउट इंटेलिजेंट जो है वो उसको मेजर नहीं कर सकते. इसमें ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. The fourth one skill is ratio skill. Ratio skill is defined as interval skill plus ratio are consistent true zero. इसमें true zero हमारे पास शामिल होता है और interval skill में हमारे पास true zero शामिल नहीं था. The zero in the skill makes this type of measurement unlike the other types of measurement. All thought the properties are similar to that of the interval level of measurement. For example, it is used to measure height, phone calls received, area, weight, etc. If one person weight is 100 pounds while other is 50 pound, then the ratio is 2:1. मतलब इसमें हम ट्रू ज़ीरो का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं. मतलब दो लोगों के दरमियान हम कंपैरिजन भी कह सकते हैं, इसको रेशियो की हालत में भी लिख सकते हैं. द रिसर्चर शुड नोट दैट अमॉन्ग दीज लेवल्स ऑफ मेजरमेंट द नॉमिनल स्केल इज सिंपली यूज्ड टू क्लासिफाई data. Various the levels of measurement described by the interval level and the ratio level are much more exact. इस ग्राफ को हमने नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को इस सीढ़ियों की पे हम आसानी से डिफाइन किया है. नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल इज आल्सो कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. ये हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल में शामिल होता है और रेशियो डेटा जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस में आता है. नॉमिनल में हम एट्रीब्यूट्स आर ओनली नेम वीकेस्ट. सही है, मतलब ये हमारे पास सबसे
नीचे सीढ़ी है, मतलब ये सबसे कमज़ोर हमारे पास है। ऑर्डिनल में हम ऑर्डर कर सकते हैं और इंटरनल में हम डिस्टेंस इन मीनिंगफुल और रेशियो ये सबसे टॉप पर है। एब्सोल्यूट जीरो इसमें शामिल होता है। ईच लेवल हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रीसीडिंग लेवल प्लस समथिंग मोर, मतलब नॉमिनल सबसे नीचे पे है, इसके ऊपर जो है वो ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल के ऊपर जो है वो इंटरनल स्केल है और सबसे टॉप पे रेशियो स्केल हमारे साथ आता है। वेरिएबल एंड टाइप्स ऑफ डाटा, इसको हम कैसे मतलब कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब ये जो वेरिएबल है ये नॉमिनल है, ये ऑर्डिनल है, ये इंटरवल है, ये रेशियो है। ठीक है, अगर मैं हेयर कलर की बात की जाऊँ, मतलब अगर किसी बंदे से एक क्वेश्चन पूछी जाए क्वेश्चनियर में कि आपका बालों का रंग कैसा है, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे नॉमिनल है, यस, हाँ, ऑर्डिनल नहीं है, नो, क्योंकि ये नेम है ना, तो ये नो है, इंटरवल भी नहीं है, नो, और रेशियो भी नहीं है। लेवल ऑफ स्केल हमारे पास क्या आ गया, नॉमिनल लेवल आ गया। ठीक है, जिप कोड अगर हम बात की जाए, जिप कोड ये भी नॉमिनल है, क्योंकि इसमें सिर्फ नेम शामिल होता है। ठीक है, ऑर्डिनल ये इसको भी नो किया जाए, इसको भी नो किया जाए और इसको भी नहीं किया, और लेवल ऑफ स्केल जो है वो हमारे पास नॉमिनल है। लेटर ग्रेड की बात की जाए, मतलब ग्रेड की बात की जाए, ये नॉमिनल भी है, ठीक है, और ये ऑर्डिनल भी है, और इंटरवल नहीं है तो रेशियो भी नहीं है, तो ये लेवल ऑफ स्केल हमारे पास ऑर्डिनल में आ गया। आई क्यू स्कोर की बात की जाए, ये हमारे पास नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है और इंटरवल भी है, और रेशियो नहीं है तो इसको हम इंटरवल लेवल ऑफ स्केल भी इंटरवल है। अगर हाइट की बात की जाए, हाइट हमारे पास नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, इंटरवल भी है और रेशियो भी है। ठीक है, तो लेवल ऑफ स्केल हमारे पास रेशियो आ गया। अगर एज की बात की जाए तो एज हमारे पास नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, इंटरवल भी है और रेशियो भी है। ये लेवल ऑफ स्केल हमारे साथ रेशियो में आता है। टेम्परेचर जो है वो नॉमिनल भी है, ऑर्डिनल भी है, इंटरवल भी है और रेशियो नहीं है, इसको हम इंटरवल में लेवल ऑफ स्केल जो है इसका इंटरवल है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इंडस्ट्री ऑफ नॉलेज। अल्लाह हाफिज़।